group of schools. Today we are going to study a chapter from supplementary reader, that is the Happy Prince by Oscar Wilde. This lesson is for class 9th. In this lesson, the author has described a prince. The prince who was living in his palace very happily. In the entire life, the prince never saw any kind of unhappiness, grief, sorrow, sadness. He always saw happiness. He always met the people who were very happy. So he did not come to realize what is sadness, what is grief. Although the prince lived a very short life, after some time, after some years, the prince was dead. When he was dead, the people of that town established a beautiful statue of that prince on the center of the town. The statue was looking very beautiful. Whenever anyone saw that statue, he was delighted. The statue was made of gold, iron, sapphire and ruby. The inside body of the statue was made of iron, and the whole covering of the body was made of gold, means the whole statue was wrapped with the leaves of gold. The statue was holding a sword, and the handle of the sword was made of ruby, that is very precious stone. The eyes of the statue were made of sapphire, that is also very precious stone. So now comes a very prestigious, very important protagonist or character of this story, that is Swallow. Swallow is a bird. She was going to migrate from there to Egypt, which is known for warmer place. Because Swallow's friends had already gone there, so she also wanted to join them for her comfortable life during that period. So she was on her way. On her way, when she was going, in between there was, it was night, रात हो जाती है. So she wanted to take stay for the night, and she searched a safer place, and at last she found the statue standing at the center of the town. That was looking very beautiful place. So the Swallow visited that place. वहां पर पहुंच जाती है, और इसके बाद में उसने देखा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है, मैं यहाँ पर आराम से इस रात को गुजार लूंगी. जब वो वहां पर उसके पैरों के नीचे बैठ जाती है, स्टैच्यू के पैरों के बीच में बैठ जाती है, तो थोड़ी देर बाद उसने देखा, रियलाइज किया कि कुछ पानी, कुछ ड्रॉपलेट्स ऊपर से टपक रही है. तब उसने अचानक देखा, आसमान की ओर देखा, and she found no trace of clouds in the sky.
कोई भी बादल का एक भी पैच आसमान में नजर नहीं आया। तो वो अमेज्ड हो गई, चौंक गई कि ये पानी आखिरकार आया कहां से, बारिश तो हो नहीं रही है। थोड़ी देर बाद वन ड्रॉपलेट फॉलोज एनदर, एक के बाद एक ड्रॉपलेट्स गिरती जाती हैं। तब वो हैरान हो जाती है कि क्या हो रहा है, पानी कहां से आ रहा है, मैं तो स्टैच्यू के नीचे हूं, पानी कहां से आ रहा है। तो एक आवाज आती है, बड़ी अजीब सी आवाज थी, बहुत गंभीर आवाज थी, और उसने, उस आवाज ने क्या कहा, ये बारिश का पानी नहीं है, ये मेरे आंसू हैं। तो अचानक देखते ऊपर कि स्टैच्यू की आंखों से आंसू टपक रहे थे, और फिर क्या होता है, उसने पूछा स्टैच्यू से कि आप क्यों रो रहे हैं। तो स्टैच्यू बताता है, वो प्रिंस बताता है कि सुनो, जब तक मैं जीवित था, जब तक मैं जिंदा था, मैंने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में कभी भी कोई दुख नहीं देखा। आई नेवर एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ सैडनेस, एनी काइंड ऑफ अनप्लेजेंट मोमेंट। बट नाउ when I am dead and standing at the center of the town in the form of statue, I can see, I can overlook many people. They are very sad, they are suffering from many kinds of problems. तो उसने कहा, मैं भी आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ। उसने कहा, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो मेरा एक काम करो, यहां से मैं कुछ दूरी पर एक काम करो, यहां से मैं कुछ दूरी पर एक कॉटेज देख रहा हूं, जिस कॉटेज के अंदर एक सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस एक ओल्ड लेडी है जो कि सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस मतलब अ लेडी हु इज knitting some clothes, doing embroidery on that cloth, कुछ कढ़ाई बुनाई का काम करती है वो on order, but she is very poor. Her son is lying sick and he was asking for oranges, but the lady was not able to provide him oranges because she was so poor. तो उसने कहा, उस स्टैच्यू ने कहा, तुम एक काम करो, मेरे जो इस तलवार में, इसका जो हैंडल है, इसमें रूबी लगा हुआ है, ये बहुत कीमती पत्थर है, इस स्टोन को ले जाकर के यहां से निकाल करके तुम उसके कॉटेज में रख के चले जाओ, वो उसकी हेल्प करेगा, और वो लेडी अपने बच्चे को इलाज करवा पाएगी उसका, और उसको ऑरेंजेस दिला पाएगी, खुश हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, और वो जो सॉल्व होती है वो रूबी का पत्थर लेकर चली जाती है, और जब वहां पहुंचती है तो वो जहां पर बेटा लेटा हुआ था उसका, उसके पास वो रख देती है उसे, और फिर अपने पंख फड़फड़ाती है वहां पर। अचानक उसका बेटा जागता है और उसको बड़ा अच्छा फील होता है उसके पंखों की हवा से, ठीक है, और इसके बाद वो वापस वहां से आ जाती है। फिर वो पहुंचती, जब वो पहुंचती है वहां पर, शी वॉज फीलिंग वेरी गुड, लाइफ में उसने पहली बार इतना अच्छा फील किया था। तो उसने स्टैच्यू से कहा कि अब मुझे ठंडी लग रही है, पता नहीं क्यों। तो उसने कहा, तुमने बहुत अच्छा एक काम किया, नेक काम किया है, इस वजह से तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। आफ्टर दैट द प्रिंस कुड सी अ यंग बॉय that was going to write his play for a theatrical company.
that was to be played on the stage. But he was very hungry, very thirsty, did not have any money, very poor. So he did not concentrate on writing his play. So, and when he did not write the play, he would not earn money to survive. तो उसने कहा तुम एक काम करो, उसने प्रिंस ने मतलब जो स्टैच्यू था उसने उस सोलो से कहा तुम एक काम करो, मेरी आंखों में 2 सैफायर के स्टोन्स लगे हुए हैं, उनमें से एक सैफायर का स्टोन निकाल करके तुम उसको दे आओ। तो उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसने कहा नहीं तुम ऐसा करो, मैं तो एक स्टैच्यू हूं केवल, और वो एक लिविंग बीइंग है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बहुत दिक्कत हो रही है, तुम मेरी प्रॉब्लम समझो और उसको खुश करो जाकर के, उसका दुख है उसको दूर करो, तुम मेरा इतना काम करो। तो उसने कहा ठीक है। तो सोलो जो है उसका एक सैफायर निकाल करके, एक आंख निकाल करके वो उसको देने जाती है और उसके पास रख करके चली जाती है। When she came back, now Solo said to the prince that now he should allow her to go on his journey. तो प्रिंस ने कहा ठीक है, you can go, but before going there, would you please do me a favor? अब क्या है? उसने कहा यहां से मैं कुछ देख पा रहा हूं, एक छोटी सी लड़की मैं देख रहा हूं जो बहुत गरीब है, एंड शी वॉज सेलिंग matchsticks and she had to earn something by selling matchsticks, and she had to give that money to her parents. But what happened? All the matchsticks fell into the drain. उसकी सारी जो मैचस्टिक्स थी, जो माचिस जो तिलियां थी, वो सारी सारी तिलियां एक नाली में गिर गई हैं। नाउ शी वॉज क्राइंग, शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो उसने कहा एक काम करो, ये मेरा जो दूसरी आंख का सैफायर है इसको निकाल कर उसको दे आओ ताकि वो अपनी समस्या सॉल्व कर सके। तो उसने कहा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, अदरवाइज यू विल बी टोटली ब्लाइंड। उसने कहा तो मेरी परवाह ना करो, आई एम जस्ट अ स्टैच्यू, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हूं मैं, मेरी परवाह ना करो, मुझे नहीं दिखाई देगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम उसको दे आओ। When the prince insists on doing that, तो सोलो जो है क्या करती है, सोलो takes out the piece of sapphire from the second eye of the prince statue and carried it away to the little girl where she was crying. और जब वहां पहुंचती है उसको हैंडओवर कर देती है। She became very happy to find that, and happily she moved the piece of sapphire from the second eye of the prince statue and carried it away to the little girl where she was crying. और जब वहां पहुंचती है उसको हैंडओवर कर देती है। She became very happy to find that, and happily she moved to her house. Then after, when she came back, when the swallow came back from there, she found that the prince was again unhappy. तब swallow ने पूछा अब क्या हुआ, why you are unhappy? उसने कहा one more thing I am seeing from here. अब आप क्या देख पा रहे हैं? उसने कहा देखिए मुझे दिखाई पड़ रहा है two boys, very hungry, very poor,
and they are shivering with winter because it was winter season, and they have no blanket with them to wrap their body. तो एक काम करो तुम, ये जो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों का पूरा एक ग्रुप है जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, बेचारे बहुत परेशान हैं, उनके लिए तुम क्या करो, मेरी पूरी बॉडी, द होल बॉडी वॉज कवर्ड विद गोल्डन लीव्स, कह रहा ये मेरे किसी काम के नहीं है, यू प्लीज टेक ऑफ दीज लीव्स फ्रॉम माई बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस गोल्ड अमाउंट। तो सौरव ने कहा ठीक है, ओके, तो वो सारा का सारा गोल्ड से निकाल करके और वो बच्चों को all the children, all the boys became happy to find that pieces of gold. After that, जब वो वहाँ जाती है, she was very good. Now she had come to know that the prince was very kind, very kind. अब the swallow wanted to say something to the prince in his ear. उसने कहा मुझे तुम्हारे कुछ कान में कहना है। उसने कहा बताइए। तो उसने कहा, सॉलो ने कहा, आई वॉन्ट टू किस ऑन योर चीक्स, मैं तुम्हारे गालों पे किस करना चाहती हूँ, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड पर्सन एंड आई एम ओवरवेल्म्ड with your deeds, with your good deeds, with your kind deeds. मैं तुम्हारे इन कामों से बहुत, मैं मतलब मेरा दिल जो है पिघल गया है और मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारे गालों पे किस करूं। And I am going. उसने कहा मैं जा भी रही हूँ। तो उसने कहा ठीक है, बेशक तुम जाओ, अब मेरे पास फिलहाल कुछ काम नहीं है, you can go, you can resume your journey. तो उसने कहा लेकिन but you will not kiss on my cheeks, you will kiss on my lips, because I love you, you have done my work and now I love you very much. तो तुम मेरे होठों पे किस करोगे, और किस करने के बाद the swallow was dead. She falls dead on the feet of the statue. As soon as she was dead, she was fallen on the feet of the statue. The leaden heart of the statue was cracked. The heart cracked. A sound came from his body, and it was the sound of the cracking heart. इसके बाद क्या होता है, वेरी पुअर कंडीशन ऑफ द स्टैच्यू वॉज देयर. द मेयर ऑफ द सिटी विजिटेड एट द साइट वेयर द स्टैच्यू वॉज स्टैंडिंग. जो मेयर जब वहां पे आता है तो उसने अपने लोगों से कहा कि ये स्टैच्यू कितना खराब दिख रहा है, इसको यहां से हटाओ. एक्चुअली ही वांटेड टू एस्टैब्लिश हिज ओन स्टैच्यू देयर. तो उसने कहा इसको हटाइए यहां से, बहुत खराब दिख रहा है इसको, है ना. तो जितने द पीपल कैरीड दैट स्टैच्यू फॉर मेल्टिंग द मेटल दैट वाज इन द स्टैच्यू. वो मेल्टिंग के लिए ले जाया जाता है, लेकिन जब उसको मेल्ट किया जाता है तो एक वहां पर एक घटना होती है कि जो लेडन उसका हार्ट, पूरी बॉडी तो मेल्ट हो जाती है, लेकिन उसका जो हार्ट लेड का बना हुआ था दैट कुड नॉट बी मेल्टेड, वो मेल्ट नहीं हो पाता. क्रैक्ड हार्ट जो हार्ट था वो मेल्ट नहीं होता है. इसके बाद गॉड वॉज सीइंग फ्रॉम द हेवन these all activities happening on the earth. उसने गॉड
sends his messengers to the earth to bring the two most beautiful things from the earth. The messengers यहाँ पे आते हैं अर्थ में, they found two things. One was the dead body of Saul and the cracked heart of the prince. And they took these two things to God. God was very happy, and he said that they had chosen the right things. These two things were the most beautiful things on the earth. और गॉड ने कहा, मैं ये जो सोलो है, I will keep this solo in my paradise forever, and the broken heart of the prince will be with me always. The prince will remain happy forever because he deserved happiness. So this way the story ends here. I hope that you have liked the story very much, and also you have understood the story very well. Thank you very much.